Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Sheila IAS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से articles that we're discussing today. So first article is on the Enforcement Directorate. So यहाँ पर बात करेंगे Enforcement Directorate क्या है, क्यों फॉर्म किया गया था, क्या क्या जुरिडिक्शंस है इसके, क्या क्या मैंडेट्स हैं, क्या क्या है इनके लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट्स, ऑल दिस नुआंसेस को एनालाइज करेंगे in our first article. The second one is related to two aspects. The first one is the Anthropological Survey of India. Then there is this particularly vulnerable tribal groups. So Anthropological Survey of India as well as PVTGs पे बात करेंगे in our second article. The third one is on the aspects of snow leopards. So यहाँ पर बात करेंगे snow leopards हैं क्या, IUCN में क्या स्टेटस है उनका, एज वेल एज इंडिया में क्या क्या कंजर्वेशन स्टेटस हैं, कंजर्वेशन सिनेरियोज हैं, कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, और कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करना चाहते हैं, एज वेल एज पैन वर्ल्ड में क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, ऑल दोज थिंग्स विल बी हैविंग डिस्कशन ऑन इन आवर थर्ड आर्टिकल. And as usual, the fourth one is on the quiz of the day. So let's start with the first one, that is on the aspects of Enforcement Directorate. Now let me warn you guys before entering to the topic, जब भी हम लोग Enforcement Directorate जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं, it is often surrounded with political controversies and political debate. But as an UPSC aspirant, we should be way far from this political controversies and political debates. और जो basic nuances हैं Enforcement Directorate क्या हैं, Indian political perspective से जो भी important है, that I have already discussed in a critical manner in our 17 September video. So please refer to this video so that you have a very good understanding of this organization. With that, let's move to our next article, that is on the Anthropological Survey of India and the particularly vulnerable tribal groups. शुरू करते हैं Anthropological Survey of India से. So what is Anthropological Survey of India? So it is the only research organization to pursue anthropological research in an governmental setup. Anthropological Survey of India बनने से पहले there was another organization known as Zoological Survey of India. और Zoological Survey of India से जो Anthropological branch था, that was carved out of the Zoological Survey of India in the year 1916, and that is how the Anthropological Survey of India was found. और जो फर्स्ट डायरेक्टर हैं, द फर्स्ट डायरेक्टर वाज डॉक्टर BS गुहा. इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? द हेडक्वार्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इन कोलकाता. नाउ द बेसिक क्वेश्चन हियर इज, क्यों दिस इज द ओनली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन गवर्नमेंट सेटअप जहां पर हम लोग एंथ्रोपोलॉजी पे रिसर्च करते हैं? क्या जरूरत थी ANSI की? सो लेट्स सी द नीड ऑफ दिस ANSI. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ नीड, एक ज़रूरत महसूस हुई कि हम लोग ट्राइबल पॉपुलेशन जो हैं, जो एबोरिजिनल्स हैं, जो डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स हैं, उन्हें हम कैसे इंटीग्रेट करें. जो कंट्री में जो भी चेंजिंग सिनेरियोज हैं, जो भी चेंजिंग कंडीशंस हैं, उनके साथ हम कैसे उन्हें मैनेज करें, कैसे उन्हें डेवलप करें, और इस डेवलपमेंट को देखने के लिए कैसे हम लोग मैनेज करें, उनकी आइडेंटिटी को कैसे प्रिजर्व करें, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. अब देखते हैं क्या क्या है इनके प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स. सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हियर इज टू स्टडी द ट्राइब्स and other communities that form the population of India, both from biological perspective and cultural perspective. तो जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको बायोलॉजिकल एक्साइड से देखें, बायोलॉजिकल एंगल से देखें, एज वेल एज कल्चरल एंगल से देखें और उन्हें प्रिजर्व करें. दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. इसके साथ साथ टू स्टडी एंड प्रिजर्व द ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स बोथ फ्रॉम एंशिएंट पीरियड एंड कंटेम्परेरी पीरियड इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. देन to function as a training center for students of the field of anthropology, and one of the major function of this organization is to collect, preserve and maintain documents the biocultural heritage and traditional art and craft of the tribal population, और उन्हें रिसर्च के तौर पर पब्लिश करें. और पब्लिश करने के लिए काफ़ी सारे जर्नल्स हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है, और हर एक जर्नल में वो पब्लिश करते हैं ताकि जो बायोकल्चरल हेरिटेज हैं, जो अदर एस्पेक्ट्स हैं, जो प्रिजर्विंग एंटिटीज़ हैं, उसे हम प्रिजर्व कर पाएँ, जो कल्चरल एंटिटीज़ हैं उसे हम प्रिजर्व कर पाएँ, जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स हैं ट्राइबल कम्युनिकेशन के, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के, उसे हम प्रिजर्व कर पाएँ. एंड दैट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. विद दैट अब बात करते हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पे. सो ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान में हमें यह महसूस हुआ कि जो ट्राइबल कमिटीज़ हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो पॉपुलेशन है,
उनमें से भी काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ हैं जो कि बाकी एसटी पॉपुलेशन से काफ़ी ज़्यादा वनरेबल हैं और इसीलिए हमें एक सब कैटेगराइजेशन की ज़रूरत महसूस हुई एंड दैट इज़ हाउ देयर वाज एन कमिटी नॉन एज देबार कमिटी जो बनाया गया ताकि हम सब कैटेगराइजेशन कर पाएं। और देबार कम्युनिटी ने फिर कहा कि यस देयर इज ए नीड ऑफ सब कैटेगराइजेशन और उन्होंने उस ग्रुप को नाम रखा द प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। अब इन प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स में किस किस कम्युनिटी को हम ऐड करें उसके लिए काफ़ी सारे क्राइटेरियाज दिए गए। फॉर एग्जाम्पल द फ्यू ऑफ द क्राइटेरियाज वेर प्री कल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड अ डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। तो इन 4 कैटेगरीज के थ्रू, इन 4 असेसमेंट क्राइटेरियाज के थ्रू हम किसी कम्युनिटी को पर्टिकुलरली वनरेबल या प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स में रखते थे। देन क्योंकि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स एक कंसाइज टर्म नहीं था, एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म नहीं था और इसीलिए ही हमने इसे रीनेम किया एंड नाउ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को हम रीनेम करके नाउ वी कॉल इट एज पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अगर रीसेंट डाटा की माने, अगर 2011 सेंसस डाटा की माने, सो एज ऑफ नाउ वी आर हैविंग 75 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो कि डिफरेंट स्टेट्स में स्प्रेड ऑफ हैं। देन अगर हम कैटेगराइजेशन की बात करें, सो विच इज द ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड दिस कैटेगराइजेशन? द ऑर्गेनाइजेशन हियर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। प्लीज रिमेंबर, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स काम नहीं करती है। द कैटेगराइजेशन इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब देखते हैं कौन से कमिटीज हैं। सम ऑफ द मेजर कमिटीज को देखते हैं इन दिस ग्राफ। सो यहां पर अगर हम लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बात करें, सो देयर इज दिस कोंडा सवर्कर्स, देयर इज दिस कुटिया कोंड एंड अदर कमिटीज जो कि आंध्र प्रदेश एज वेल एज तेलंगाना में है। बिहार और झारखंड की बात करें, सो असूर्स वन ऑफ द फेमस कमिटीज, दे आर देयर इन बिहार एंड झारखंड। अगर गुजरात की बात करें, कथोड़ी इज देयर। कर्नाटक की बात करें, कोरागा इज देयर। केरला, चोलानाइक्यास इज देयर एज वेल एज वेरियस स्टेट्स में ऑल टुगेदर 15 स्टेट्स में देयर आर वेरियस कमिटीज। ऑल टुगेदर 75 पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि इंडिया में स्प्रेड ऑफ हैं और उन्हें काफ़ी सारे स्पेशल प्रिविलेजेस और सेफगार्ड्स दिए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। With that, now let's move to our next article that is on the aspects of snow leopard. अब स्नो लेपर्ड काफ़ी सेंसिटिव इशू है, इसीलिए वी हैव ऑलरेडी कवर दिस टॉपिक इन ग्रेट डिटेल्स इन आवर 14 अक्टूबर वीडियो, जहां पर स्नो लेपर्ड है क्या, कैसे हम उसे कंजर्व करते हैं, ग्लोबल लेवल पे एज वेल एज इंडियन लेवल पे क्या क्या कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज हैं, इनिशिएटिव्स हैं, all those things in a critical manner we have discussed in our 14th October video itself. So please refer to this video so that you have a very good understanding of this topic. With that, now let's see our quiz of the day. The first question is regarding the Moron risk premium. Try करें इस क्वेश्चन को. Whereas the second question is regarding the Reporters Without Borders. Again, both these questions are driven from the current affairs aspect only. So current affairs से related हैं ये questions. So इन questions को attempt करें और इन questions के जो answers हैं along with the explanations would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, as well as जो PPT है जिसके ऊपर हम लोग ने एनालिसिस किया, that also in the form of PDF you would get a link in video description. So I hope today's analysis was beneficial for you guys. We'll be working hard for you guys, but at the same time work hard, study hard, but most importantly stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.